ब्रिज वाला स्टेशन बनवाना ब्रिज बनता ब्रिज यहाँ सब अपराध निकल रहा है। वाला स्टेशन
शांति शांति शांति। मातृ प्रणाम 1 2 3। रात हो गया सब बोले बोले अभी सब कही जाए वास्ते प्रवीण जी और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बनाइए वास्ते 100 था तो कहाँ खोले लगाइए ना खोले का। Good morning to all of you and very warm welcome again. In continuation, today we going to organize again another CBT. The topic is health and wellness in school, and the resource person who are get training from CBSE PRP, Prospective Resource Person, Rajkumar sir. Due to some technical reason, today we going to start this training program little bit later. So we have to be continuing this training program in later evening till later evening. In the whole session, because it is assumed from initial time that health and productivity, human productivity is positively correlated with each other, and health is the prime requirement of human resource. If we willing to build a nation, then we have to first build our human resource and must have to increase their productivity, and it never be possible without a good healthy environment, which just starting from primary school, secondary school, and also higher secondary. Nowadays, there are very technical issues and surrounding are very polluted in various manners. So health issue is a big challenge in front of our society and nation. And how we can tackle this problem in overall our nation, especially in classroom. It starts because the teacher is always an ideal role player for students, and so a teacher have to be very aware about health issues, especially in children, and how they become a good citizen of the nation. This topic is presented by Rajkumar sir, and Rajkumar sir is another versatile genius of our own institution. And so to start this session, I must invite Rajkumar sir to start the presentation of this topic. Sir, thank you, Principal sir, who are present here for this school health and wellness. Starting time now shifts. Now I introduce the table 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2. And now I am saying you, where is the table 1 to 7? Please, Lieutenant sir, may you tell me why you are missing the table 1 to 7? Because it starts from that gate. Anyone can say, and the missing of the numbers. This is wellness. This is known as the wellness. Whom we teach the wellness, whom we teach the health, and that is start at the age of 8 years. जो भी चीज हम स्टार्ट करते हैं वो 8 साल के बच्चे समझ में आता है कि हमको जो है स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है। 8 साल के बच्चे ये जानते हैं कि स्वच्छता क्या है, और 8 यह शुरू हो जाता है स्वच्छता का कार्यक्रम। हम पढ़ाते हैं, हम जानते हैं, और स्कूल का एक अच्छा सा, जब तक स्कूल का इन्वॉल्वमेंट, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस टुडेज टॉपिक, तो स्कूल का हेल्थ 100% डिपेंड ऑन वी। हमारे ऊपर स्कूल का हेल्थ डिपेंड करता है, और उसका 2 टाइम्स अधिक हमारे स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। जब हम
तो हमारे स्टूडेंट्स 200% हेल्दी रहेंगे और स्कूल 400% हेल्दी रहेंगे। तो इसी क्रम में जब हम क्रम शुरू कर रहे हैं तो इसी क्रम में अभी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिटिंग अरेंजमेंट एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू एक्सचेंज आवर व्यूज। तो ये जो सिस्टम है क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 7, ये अलग अलग स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले मनोज सर प्लीज डिस्ट्रीब्यूट ऑल द स्लिप्स, प्लीज हेल्प बिजनेस सर। जब तक ये स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तब तक एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक अच्छी सी कहानी है। नहीं ले आप स्लिप लेंगे और अपने अपने स्थान पर मूव करते जाएंगे नेम प्लेट के साथ। इसलिए आप क्लास चेंज करने में, सीट चेंज करने में किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। जब हम यहाँ बैठे और मालूम है वी आर द वॉरियर्स ऑफ एसडीएम, और जब हम यहाँ बैठे हैं तो आज तक आपने दूसरों के लिए तालियां बजाई हैं। आज आप अपने लिए देखते हैं हम कि आप कितने देर तक तालियां आप अपने लिए बजा सकते हो। रेडी स्टार्ट। आज आपको अपने लिए तालियां लंबी देर तक ताली बजाए, कुछ लोग 2 बार बजा कर रुक गए। भाई साहब मेरा आप ताली नहीं बजा सकते हैं। कहानी सुनी होती है एक लड़की के फादर की, उसकी बेटी शादी के योग्य है और वह जो है पिता है एक लड़की का। समाज में, हमारे समाज में बहनें हैं और जैसे ही जज होता है माता पिता जो भी हैं उसकी शादी की चिंता जन्म से शुरू कर देते हैं। और एक लड़की का फादर घूमते हुए पता चलता है, घूमते हुए एक लड़की के यहाँ जाता है। ध्यान से जब लड़के का पता चलता है लड़की की शादी करने वो जाता है तो लड़के के यहाँ कैसे पहुंचता है, देखता है कि लड़के के पास आलीशान बंगला और बंगले के सामने उसका बगीचा है, साथ में नदी, पोखर, ये सभी चीजें अवेलेबल हैं और बैठना है। लड़की का फादर वहां पहुंचता है और उसका रिसेप्शन अपने दोस्त के साथ पहुंचता है और उसका रिसेप्शन वहां अच्छा से इंट्रोड्यूसिंग लड़के से होती है। लड़का कहता है ये 6 गाड़ियां 4 चक्के की जिसमें जो है BMW भी है, ये गाड़ी हमारी है। लड़की का फादर पूछता है इस गाड़ी को ड्राइव कौन करता है? कहता है मेरे पास बहुत। फिर कहता है कि अच्छा आप बताइए किस आम का पेड़ है? फिर सर्वेंट को कहता है बताओ किस आम का पेड़? घर लौटने के बाद फिर वहां से घूम के वो लौटता है, उनके यहाँ बैठता है लड़के वाले, और लड़के के वाले के यहाँ बैठने के बाद पूछता है लड़के से कि क्या
लड़की का फादर बोलता है कि मैं बाद में फोन करूंगा। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी मां पूछती है क्या शादी फाइनल हो गया, आप मिठाई लेकर नहीं आए, उतना बड़ा घर है, क्या कारण? लड़की का फादर कहता है, सोचता है कि अरे मैं कहाँ होगा, बारात लेके आए तो मैं ठीक से भोजन भी ना कर पाए। इस तरह से भी कोई इनकार कर सकता है अपने अपने परिस्थिति को देख करके। ऐसे गाड़ी चलाना है ना चलाना है वो तो ऊपर देखा। मेरा भी मतलब है लड़की का पिताजी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार लड़के को खोलना चाहिए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। लड़की के पिता ने सोचा इसका सारा काम तो दूसरा कोई करता है, ये अपने पर डिपेंड है। ऐसे भी हम सबों के पास कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके पास बाइक है, 5 साल से वो बाइक लिए हैं, अब तक उनका बाइक दूसरा कोई चला रहा है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके शायद लड़की के पिता ने उसे नकारात्मक जवाब दिया। अपना जीवन दूसरे के भरोसे जीता। ऐसे में जो अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में समर्थ हो, भरा हुआ किसी दूसरे की आवश्यकताओं को कैसे पूर्ण कर सकता है? स्वावलंबन इसमें नहीं था, इसलिए लड़की के पिता ने उसे विवाह करने से इनकार कर दिया। हाँ, एक बार उसका जीवन बेहतर रूप में और जीवन उसका नहीं मिला, वो दूसरे पर हमेशा डिपेंडेंट रहा है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि हम लोग चिकन खाते हैं मुर्गी फार्म का, और वह दूसरा मुर्गा जो है अपने पत्नी की बारी का इंतजार रहा, वो कभी जो है अपना जो है दिमाग का जारी नहीं कर पाता। लेकिन वहीं पर दूसरे जो समूह में घूमते रहता है, फिरते रहता है, उसके पास दिमाग चलता, वही स्थिति वहाँ मुर्गा भी बढ़ रहा है। लड़की का पिताजी ने उस लड़के के घर में सारे सुख सुविधाएं होते हुए भी उस घर को स्वीकार नहीं किया। जज तो अभी के सरकार जो चल रही है, जज उसके अपोजिशन जैसा, गांधी फैमिली जैसा वो व्यक्ति जरूर था, लेकिन मोदी जैसा वो व्यक्ति नहीं था, और उसके पिताजी को मोदी जैसा व्यक्ति चाहिए था, इसलिए वो राहुल जैसे परिवार फैमिली को स्वीकार नहीं किया। एक विचार ये भी हो सकता है दिमाग में कि लड़का में किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी। जब उसमें किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो वह भविष्य में स्वस्थ पूर्वक जीवन वह नहीं बिता सकता है, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी को देखते हुए उसने इनकार कर दिया। एक बात और बढ़कर ध्वनि होता है, फिजिकल बेटी को सुखी नहीं रख पाएगा। जो खुद दूसरे पे डिपेंड है, कि एक आदर्श पति नहीं बन सकता है, उस घर में मेरी बेटी सुखी नहीं रह सकती। इस लड़के के पिताजी ने इसकी जो शिक्षा दी है, इसको पंगु बना दिया है, इसका चतुर्दिक बहु की प्रतिभा का विकास हुआ ही नहीं, सारी प्रतिभाएं इसकी बनी है। इसलिए ऐसे लड़के के साथ किसी भी लड़की का संबंध शादी विवाह करने के लिए बहुत अनुचित है, सिर्फ सकता है। जबकि पिता का दायित्व होता है बच्चे का संबंधों का ध्यान देंगे, भटके के नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कहानी को रिमेम्बर में लड़की के पिता ने शादी करने से इनकार कर दिया कि इनको उस लड़के में सीखने की टेंडेंसी है कि वो कुछ सीख सके। I think that the boy has no his own personal traits or personal qualities. He has no any skills which he know. और थैंक यू। एक क्लैप बनता है सब
सब लोग एक बार क्लैपिंग करेंगे थोड़ी थोड़ी देर। लड़की में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसके कारण उसको बाइक चलाने में या ड्राइविंग करने में डर लगता। इसके कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस मींस कॉन्फिडेंस का मतलब कि एट ए टाइम व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। He was not practical, neither pragmatic. So सबसे बड़ा चीज है, कोई भी आदमी पढ़ा लिखा हो नहीं हो, व्यवहारिक ज्ञान रहता है तो उससे भी अपना लाइफ चला सकता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं होने का उसके फादर उसको एक गलत बनता है क्योंकि वो सोशल नहीं था। नहीं चलाता है, गाड़ी नहीं चलाता, वो व्यवहारिक नहीं होता है, सबसे लड़ते झगड़ते रहता है। सही बात तो ये है कि लड़के ने समय के साथ चलना नहीं सीखा, समय के अनुसार अपने आप को He has not a time management. उसके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं था, वो टाइम मैनेज करना नहीं जानता था और वो अपने उस समय के हिसाब से परिवर्तित करना नहीं चाहता था, क्योंकि इंसान अगर चाहे तो बड़े से बड़े काम को कर सकता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा कि वो कितना बुद्धिमान है, उसके पास टाइम नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं। जहाँ तक मेरा सोच है कि बाइक चला ही नहीं रहा है तो हो सकता है उसके पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि बाइक चलाने में होता क्या है, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा आई, मेरा दृष्टि सारा कुछ एक्टिव होता है, तो हो सकता है कि वो आगे क्या होगा, ये सारी चीज से जो है सो यदि बाइक चलाने आता है तो सारा चीज इसका एक्टिव होता, ऐसा नहीं भी हो सकता, ये भी एक कारण है। और डिग्री रखी जाती है उतने के आधार पर कोई मूल्यांकन करेगा। लड़की का पिता गया, दो घटनाओं का यहाँ वर्णन किया गया। एक पूछा कि बगीचा किसका है, लड़के ने नौकर से पूछा, एक सवाल का जवाब ये कि मेरा, ये दूसरा कि ये किस चीज का बगीचा है, ये उसको पूछना पड़ा। हाँ, दूसरा कि वो आम का है तो कौन सा आम है, ये पूछना पड़ा। इतना तो उस लड़के में जरूर है कि नहीं जानता है तो पूछ लेता, पूछ के बता देता, इतना नकारा वो लड़का नहीं है। लेकिन फिर दूसरी घटना बाइक वाली आई, ऐसा तो नहीं होगा कि लड़का का पिता, लड़की का पिता मात्र ये दो ही घटना देखा होगा और चीजें देखी होंगी, और भी चीजें लेकिन इन दो घटनाओं के आधार पर इन सारे लोगों को मूल्यांकन करना है कि आखिर लड़की के बाप ने उसको देखते हो। इसलिए मेरा आग्रह इतना है कि जबरदस्ती खींच करके कुछ वर्ड न निकाले जाए, एकदम कॉन्टेक्स्ट के अनुसार निकले, इसलिए कहानी पूरी रखी है। हाँ, उसमें कुछ और भी है कि वो जो है तो स्वावलंबी नहीं था, अगर 5 रुपए की जरूरत रहती तो वो सही गई सोसाइटी कि वो किसी से मांग के देता, अपने अभिभावक से मांगता, यानी कि वो स्वावलंबी नहीं था। और कोई भी लड़की शादी होने के बाद ये नहीं चाहती है कि मेरा हस्बैंड किसी से 5 रुपए आ गई है, मेरा इतनी घटना का वर्णन करती है। एक दूसरी बात आप करते हैं क्योंकि नहीं, अभी की बात मैं बता रहा हूँ, आपने उसका किया कब से कब तक किया है? जब से बच्चा छोटा रहता है तब से माँ उसे केयर करती है। हो गया, जब तब से आप केयर कर रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है। सभी माताएं पिता अपने बच्चे का केयर बचपन से करते हैं। आपने अपने बच्चे को लास्ट कब नहलाया था? वाजिब नहीं कोई करेगा। आपने अपने बच्चे को लास्ट कब नहलाया? नहीं, मैंने पूछा आपने अपने बच्चे को लास्ट कब स्नान कराया था अपने से? इस एज सफाई का विशेष ध्यान करते हैं, नाखून काटा है कि नहीं, या स्नान
कितने साल का बच्चा आपका? आगे भी 12 वर्ष का एक है और एक 13 वर्ष का। मैं कुछ बाद में प्रश्न पूछूंगा तो थोड़ा सा अटपटा होगा और उसका जो है सो आप जवाब आपको देना होगा, ठीक है? जितने लोग अपने बच्चे का कहें मैं 100% क्लियर करता हूँ, मैं उन्हीं से। बच्चे को जब ज्ञान हो गया कि स्नान करना जरूरी क्यों है, उस दिन से वह स्वयं अपने दायित्व का निर्वाह करने लगा, अपने स्नान करने लगा और गला से स्नान हो गया। मैं सिर्फ केयर करके उसके क्रियाकलाप को देखता हूँ, वो उसको खराब करता है। और लालन पालन करना नहीं, कि पिता को अपने बेटे या बेटी के जीवनोपयोगी चीजों की भी आवश्यकता होती है, उसके लिए वह अर्थ का अर्जन करके उस आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। उसका काम बच्चे को नहलाना धुलाना नहीं, यह एक माँ का काम है। एक माँ के एक बच्चे को श्रेष्ठावस्था से अधिक बाल्यावस्था माँ का काम है। माँ का काम। You have to divide the work. बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माँ आपके साथ काम करेगी तो बच्चे को कौन नहलाएगा? दूसरे बच्चे के संपर्क करते हैं, बच्चे आपसे नहीं हो सकते। बच्चियां तो माँ के साथ शेयर भी कर लेती है, लड़के आपसे शेयर नहीं कर पाते, आप भी अपने बचपन में नहीं शेयर करते हैं। नतीजा क्या होता है कि आपके अंदर भटकाव होता है और आप दूसरे तरफ जाते हैं, गलत गलत व्यसनों के शिकार होते हैं। क्यों? ड्यू टू दिस। और उस समय आप अपने आप को बच्चा बड़ा समझने लगता है और हम सोचते हैं कि बच्चा बच्चे है, इस प्रतिबद्धता में बच्चा है। तो कृपया अपने कलम उठाएं और लिखें कि उनके क्या क्या चेंजेस होते हैं। अपने अपने 5 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, जहां पे 2 लेडीज हैं, यानी कि 2 बहनें हैं, वहां से हट के जहां पे सिंगल हैं वहां पे चले जाए। सब जगह एक चले जाए, नहीं अभी लिखना है बस। दोनों में लिख में क्या क्या अंतर आता है, बॉयज और गर्ल्स में क्या क्या अंतर आते हैं जब वो 8 से 16 के एज में होते हैं। सभी टेबल्स को बनाना है, दोनों में क्या क्या बोलिए सर। यहाँ से सभी लोग आके रिप्रेजेंट करेंगे, जितना हो जाएगा। बच्चों में परिवर्तन क्या क्या परिवर्तन होता है? पहला शारीरिक विकास, दूसरा उसके आवाज में परिवर्तन, तीसरा दाढ़ी मूंछ आदि का आना, समझ शक्ति का विकास, फिर मित्रता की चाह, विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण, नई नई बातों एवं कारणों को जानने की जिज्ञासा। जैसे ही बीतती है और किशोरावस्था का प्रारंभ होने लगता है, ऐसे में बच्चों में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अगर उसको गिना जाए तो सैकड़ों ऐसे परिवर्तन हैं, लेकिन सबको 2-4 परिवर्तन ही बताना है। शारीरिक परिवर्तन, जिसमें बच्चे के अंग प्रत्यंग का विकास होता है, उसके उतार चढ़ाव होता है। व्यवहार में परिवर्तन होता है, जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे व्यवहारिकता उसमें जगने लगती है और उसके अनुसार वह परिवर्तित होता है। बाहरी दुनिया से उसका लगाव बढ़ता है, अपने अपोजिट के प्रति आकर्षण जगता है। 12-13 वर्ष की अवस्था आते आते भारत और चीन के साथ यह लागू है और मार्कस के जनसंख्या सिद्धांत को आधार बनाया गया है। तो 13 वर्ष की अवस्था आते आते बच्चे में माता पिता बनने की क्षमता हो जाती है और ऐसे में वह अपने अपोजिट के प्रति संबंध बनाना शुरू करने का प्रयास करने लगता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कहीं कहीं उसका संकोच होने लगता है।
वह अपने अधिकार के प्रति सजग होता है। जैसे यह बच्चे को कहता है यह चीज नहीं दूंगा, वो कहता है क्यों नहीं दीजिएगा। आज एक बच्चा अपने पिता से बाइक की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जिद करता है। इसका फल आप देखते हैं, विद्यालय में बच्चे बाइक लेकर आते हैं। आपके विद्यालय के 1800 बच्चों में 1000 से अधिक ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अपनी मोबाइल है। वे अपनी मोबाइल से ही बातचीत करते हैं। विद्यालय आते हैं तो ऑफ करके आते हैं, माता पिता उसको ऑफ नहीं करते, उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। तो इस प्रकार बच्चे ज्यों-ज्यों बढ़ते हैं त्यों-त्यों उनमें परिवर्तन होता रहता है। आज कुछ देखते हैं और कल कुछ हो जाता है। और लड़कियों में तो परिवर्तन सर्वाधिक होता है, लड़कों से अधिक परिवर्तन लड़कियों में होता है, क्योंकि लड़कियों के शारीरिक विकास लड़कों के शारीरिक विकास से अधिक होता है। Attention please. Listen to me. The changes which occurs during 8 to 16-year-old child. That changes occurs due to the hormonal change. In that stage, a hormone which is called gonadotropin, a stimulating hormone, is secreted from the pituitary gland very rapidly. इस स्टेज में पिट्यूटरी ग्लैंड से एक प्रकार का हार्मोन्स का सेक्रेशन शुरू हो जाता है और उस हार्मोन्स को कहते हैं गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एंड दैट हार्मोन्स इज follicle stimulating hormones and luteinizing hormones. That hormones help in the development of the secondary sexual character in both boys and girls. Changes are different in boys and girls. At first, I am going to begin in change in girls. Girls में change होता है, ये होता है कि increase in age very rapidly. 8 से 16 साल के बीच में इनकी लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है। Second, development of the secondary sexual character. गर्ल्स में जो होता है उनका साउंड जो होता है टीच हो जाता है, टिस्ट हो जाता है, मीठा हो जाता है। एंड गर्ल्स बिकम साई इन नेचर, इस थोड़ा सरली नेचर की हो जाती है। ओके, एंड ovum is released during the age of 8 to 16 in girls, and sperm are prepared in boys in that stage. जो boys होते हैं उनमें उनके टेस्टिस में sperm का फॉर्मेशन तेजी से बढ़ने लगता है। और boys में क्या होता है, उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं काफी डेवलप हो जाते हैं, उनकी साउंड हार्ड हो जाते हैं और उनका जो लंबाई होता है इंक्रीज इन लेंथ वेरी रैपिडली। एंड दे इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। इमोशनल चेंजेस में क्या होता है कि ये पेरेंट्स के मदद करते हैं। जैसे गर्ल्स जो है ये साड़ी पहनती है, लिपस्टिक लगाती है, अंदर में अपने आप को देखती है। जो बॉयज होते हैं अपने फादर के जो होते हैं कपड़े पहनते हैं और वे सोचते हैं कि हम फादर बनेंगे, समझ गए ना। और एक दूसरे का भी जो होते हैं वे नकल करते हैं, समझ गए। ये चेंजेस होता है। गर्ल्स में दोनों में ही फिजिकल चेंजिंग होते हैं। जैसे कि बच्चों में लड़कों में होता है उसका आवाज़ बदल जाता है, दाढ़ी मूंछ निकल जाती है, उस तरफ लड़की सब में भी बॉडी जो है चेंजिंग होते रहता है। दूसरा है मेंटल और सोशल और इंटेलेक्चुअल, ये तीनों जो है वह गर्ल्स में भी होता है और बॉयज़ में भी होता है। जैसे मेंटल में क्या हो जाता है कि बच्चे अपना डिसीजन खुद लेने लगते हैं। वह अगर हम कितना भी समझाएं कि गलत है सही है और उसको लगता है नहीं जो हम कर रहे हैं वही सही है, और वह ज़्यादातर उसी चलता है जो बाद में फिर वह सही भी कर सकता है कुछ और कुछ गलत भी करते हैं। सोशल है कि वह फ्रेंड ज़्यादा बनाने लगते हैं, दोस्त बनाने के चक्कर में
उसमें भी होता है कि वो सही डिसीजन नहीं कर पाते, जबकि जो घर के गार्जियन है वो बताते कि नहीं हमेशा अच्छे दोस्त बनाओ, लेकिन जब वो बाहर निकलता है, सोशल समाज में जाता है, खेलने जाता है, तो कई तरह के दोस्त बना लेते हैं और उसको पता भी नहीं चलता कि वह सही बना रहा है या नहीं, तो वहाँ वो डिसीजन नहीं ले पाता। और उसमें जो है इंटेलेक्चुअल जो है कि उसको सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है। जैसे मेरा ही बेटा है, वो हम लोग से ज़्यादा जानता है, वो हमेशा वो नई चीज़ को वह गूगल में या यूट्यूब में उसका जो प्रवृत्ति है उसको हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं कि वह जो भी करता है वो अपने से ही करता है, उसको कोई हम लोग गाइडलाइन नहीं करते हैं, तो उसमें सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। तो वह चेंजिंग वो अपने आप हुआ है, उसमें जो भी ग्रोथ हो रहा है वह अपने आप है। फिर वो जो भी डिसीजन भी करता है, जैसे अभी है कि 10th बोर्ड दे रहा है, हम लोग कोई गाइडलाइन नहीं देते हैं, वह खुद पढ़ता है, वह अपने से तैयारी करता है, फिर आगे क्या करना है, उसमें एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है उसमें, जिससे वह डिसीजन खुद करता है। यही डिसीजन गर्ल्स में भी होता है, तो गर्ल्स में भी जो है जैसे वह क्या करते हैं वो भी नहीं समझती, जैसे टीनेजर जो होती है लड़कियां, उसमें क्या होता है अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, वह जबकि हम लोग खुद समझाते हैं स्कूल में भी है कि ये अट्रैक्शन जो है स्कूलिंग तक ही चलता है, लेकिन फिर भी एक अट्रैक्शन होता है ये जिसमें जो वह गर्ल्स उस पर बच नहीं पाती। और संगत भी है, फ्रेंड सर्कल भी है, और इसमें ज़्यादा प्रभावित सोशल मीडिया यानी कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है ये ज़्यादा उसमें रोल करता है कि वह व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जो बच्चों को और क्या करता है उसमें बढ़ावा देता है उसको आगे बढ़ने के लिए। ये सब चेंजिंग हो रहा है, एक दिन होने वाला है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं है। ऐसे ये तो 13 to 18 ये टीनेज है, यह जो अवस्था है दबाव और तूफानों की अवस्था, वैज्ञानिकों ने इस अवस्था का नाम दिया है। ढेर सारे विकास होते हैं इस अवस्था में, हमारे पूर्व के सभी वक्ताओं ने इस अवस्था को बताया है। उसमें से एक अवस्था मुझे लगता है कि उस एज में बच्चों के बीच वो जो सोइंग नेचर होता है, प्रदर्शन की क्षमता, उसको ये विकास ना कहिए गुरुकुल के अंतर्गत आ जाता है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो 48 ईयर्स तक एज में भी जाने पे उनको अपने सहकर्मियों के साथ थोड़ा सा ये करना, बोलेंगे इधर और देखेंगे इधर कि क्या प्रतिक्रिया रिएक्शन आता है, उन बच्चों में भी होता है। अभी आज की जो घटना है एक मैं बता दूं, CBA लेकर के बच्चा 9th क्लास का और आता है और ITI चौक नहर के पास मुड़ करके और 2-4 साइकिल वाले बच्चे गिरने से बचे। हमको लगता है कि पूर्व का जो एग्जाम्पल था उस लड़की के पिता को वहाँ जरूर पहुँचना चाहिए। विषय पर चल बच्चों के 8 वर्ष की आयु से लेकर 16 वर्ष की आयु तक उनमें शारीरिक परिवर्तन जो है कौन कौन से, बहुत सारी चर्चाएं जो है, बहुत सारे बातें हमारे आचार्य बंधुओं के द्वारा आई है। यह जो माइक को ऑफ कर दिए हमारे प्रधानाचार्य जी ने कहा था माइक को ऑफ कर देना है। तो आज से 16 वर्ष की जो आयु होती है उसको टीनेज कहा जाता है। और यह जो अवस्था होती है, इस अवस्था में लड़का और लड़की दोनों जो है वह मैच्योर होने की ओर अग्रसर होता है। कहने का अर्थ है कि वह युवा अवस्था को प्राप्त करता है और उस अवस्था में
सभी में बदलाव आता है और शारीरिक विकास के साथ साथ उस अवस्था के बच्चों में रचनात्मक विकास भी होता है। और रचनात्मक विकास में क्या होता भाई? तो वह देखता है, जैसे कि कोई लड़का फिल्म देखने गया, तो फिल्म देखने गया तो वह फिल्म में हीरो को देखता है, तो हीरो को देखता है तो वो देखता है कि हीरो का बाल कैसा है, हीरो ने कपड़ा किस प्रकार का पहना है। कहने का अर्थ है इस प्रकार से वह उसके वेशभूषा, उसके कार्य, उसके स्वरूप को देख करके उसके अनुरूप जो है अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। ये रचनात्मक जो है। इसके बाद उसमें क्रियात्मक जो है विकास भी होता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेना है, इसलिए इस प्रकार की सोच, इस प्रकार के विचार जो है 8 वर्ष की आयु से लेकर 16 वर्ष की आयु के लड़कों में और खास करके लड़कियों में भी आता। अभी वर्तमान समय में लड़कियां जो है वह लड़कों से बहुत आगे जो है उसकी सोच जा रही है। लड़के जहां नहीं पहुंच सकते हैं वहां की सोच लड़कियों में आ जाती है। इसलिए इस प्रकार के बदलाव, इस प्रकार के परिवर्तन जो है 8 वर्ष की आयु से लेकर 16 वर्ष की आयु के बच्चों में आता है। धन्यवाद। 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में क्या-क्या मानसिक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं? 8 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चे बाल्यावस्था में ही होते हैं, उनमें मानसिक परिवर्तन ज्यादा नहीं होता है। उनका शारीरिक परिवर्तन तो होता है, वे बढ़ते हैं, उनका मन ज्यादा खेलकूद में लगता है, खेल के प्रति रुझान रहता है, वे माँ बाप से वैसे ही मिले मिले रहते हैं जैसे वे 5-6 वर्ष की अवस्था में मिले जुले रहते हैं। किंतु 12 वर्ष से 16 वर्ष तक की अवस्था में उनमें भारी परिवर्तन होता है। उनका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है और कई तरह का परिवर्तन उनमें आता है जो देखने को मिलता है। उनकी लंबाई चौड़ाई बढ़ती जाती है। बच्चों में के मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते हैं अपने शारीरिक परिवर्तन को लेकर। कई प्रकार के प्रश्न दिमाग में आते हैं जिनका उत्तर उन्हें लड़कियां तो अपनी माँ से प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन राजकुमार जी ने सही कहा है कि लड़कों को उनका उत्तर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उन्हें कई तरह के भटकाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है। मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है। उस स्थिति में सौंदर्य के प्रति चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों का रुझान होता है। अभिभावकों से वे सब प्रकार की बातें नहीं कर पाते, जो बातें वे 11 वर्ष तक की अवस्था में इजली अपने माँ बाप से, स्कूल की, घर की, आस पड़ोस की आकर करते थे, वे 11 वर्ष के बाद 12वां साल जैसे ही शुरू होता है उनमें संकोच की भावना आने लगती है। वे सारी बातों का विचार विमर्श अपने अभिभावकों या गुरुजनों से नहीं कर पाते। उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। इस उम्र में उन्हें कुछ भी समझाने में हमें बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वे आसानी से आपकी या हमारी या अपने अभिभावकों की बातों को नहीं समझ पाते हैं। वे अपना निर्णय स्वयं लेने लगते हैं। इमोशनल चेंजेस सबसे ज़्यादा इस एज में देखा जाता है। इस एज का सबसे बड़ा खासियत है, अगर कोई पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है तो भी जेंडर अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाता है। मतलब लड़का लड़की की तरफ, लड़की लड़का की तरफ झुकाव बढ़ जाता है। बच्चों में खासकर लड़का हो या लड़की शीशा के सामने ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू करता है, बाल को देखता है, आँख को देखता है, नाक को देखता है, वो एक कॉमन चीज़ है। इमेजिनेशन बच्चों का बहुत तेज़ हो जाता है और हाइपर एक्टिव, कुछ बच्चे इसमें इस एज में हाइपर एक्टिव हो जाते हैं फॉर सम रीज़न। उनको कुछ चीज़ का पता नहीं होता है क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए
इस एज में खासकर लड़कों में देखा जाता है डे ड्रीमिंग का, जो गाल पे हाथ रख के सपने में चले जाना, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है फीचर। बच्चे टॉकटिव हो जाते हैं, दुनिया के सारे बात पे, सारे सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं, बात खत्म नहीं होता है, लड़का हो या लड़की हो। एक्सप्रेशन इंक्रीज कर जाता है, कुछ बच्चे इसमें उनका एक्सप्रेशन नहीं इंक्रीज करता है, लेकिन मैक्सिमम का एक्सप्रेशन इंक्रीज कर जाता है। और उसके बाद बच्चों में, खासकर लड़कों में देखा जाता है कि उनका जो प्रोटेक्टिव नेचर है, जो मैनलीनेस है, वो दिखने लगता है। अपनी माँ के लिए, बहन के लिए वो गार्ड खड़े हो जाते हैं। बहुत सारा इस एज में क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है, चाहे लड़का हो या लड़की। लड़कों में ज़्यादा होता है और उनको डिविएशन का भी चांसेस रहता है, क्योंकि उनके जो मेंटर होते हैं वो उनके उम्र के ही लड़के होते हैं। सेक्सुअल क्यूरियोसिटी हो या फिर और भी टॉपिक्स पे वो गाइड अपना टीचर को ना मान के, गार्जियन को ना मान के अपने दोस्त को मानता है। तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। फिर इसमें एक चीज़ और देखा गया है कि जो बच्चे बहुत मॉरली, जिनका अपब्रिंगिंग बहुत सही है, जो बचपन से अच्छे स्कूल में गए हैं, अच्छे परिवार के परिवेश में रहे हैं, वो भी अपने मोरालिटी पे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं थोड़ा सा। और इस एज में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाता है और अपने आप को अलग दिखाने का भी होड़ बन जाता है। बच्चे जो हैं अपने आप को पृथक हो जाते हैं। और मेरे हिसाब से ये एक ऐसा एज है जिसमें बच्चे डिस्कस करना शुरू करते हैं कि आगे लाइफ में हम क्या करेंगे। खासकर शहर में, जनरल इसमें तो नहीं, लेकिन शहर में बच्चे 8, 9, 10th में अपना करियर ओरिएंटेशन, चाहे वो साइंस स्ट्रीम लेंगे, कॉमर्स लेंगे या आगे क्या करेंगे, उसमें भी ये फोकस करना शुरू करते हैं। थैंक यू। इसमें जैसे मैक्सिमम बातें जो है आ ही गई, जिससे उसमें सभी लोगों ने जैसे बोला कि शारीरिक विकास जो है सो तेजी से जो है सो होता है। इसके अलावा जो है सो हमको कहना है कि 8 से लेकर के 19 तक के बच्चे, मैंने 13 के बाद 13 से लेकर 19 साल के जो बच्चे होते हैं, वे अपने लक्ष्य को फिक्स करने के लिए सोचते हैं कि हमको आगे जो है सो क्या चीज़ करना जो है सो चाहिए। अपने लक्ष्य बनाने का काम जो है सो शुरू जो है सो करते हैं। और ऐसे 13 से लेकर के 19 तक की जो उम्र है, ये बहुत खतरनाक होती है। टीनएजर्स, TEEN, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 टीनएजर्स। इसमें क्या होता है कि बनने और बिगड़ने की क्षमता दोनों जो है सो होती है। बच्चा का यदि सही इन्वायरमेंट यदि मिला, बन जाएगा। और यदि उसको अपराधी से यदि संगत जो है सो हो गया, तो वो जैसे अपराध की ओर अग्रसर जो है सो हो जाएगा। अभी के जैसे समय में मार्केट में जितनी अपराध जो है सो होती है, उसमें सभी टीनएजर्स जो है सो होते हैं। इसलिए इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट चाहे समाज का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे घर का हो। और घर में यदि बाप यदि दारू यदि पीता है, तो चांसेस जो ऐसा है कि बेटा भी कुछ न कुछ जैसे सीख ही जो है सो लेगा। तो इसलिए स्कूल का, घर का और समाज का इन्वायरमेंट का असर बच्चे पर जो है सो अधिक पड़ता है। और अंतिम में जो कहना है कि माता और पिता के प्रति सम्मान की भावना डेवलप जो है होती है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में जो विषय हम लोगों को दिया गया है, वास्तव में आज के CBT के टॉपिक का आधार है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे स्कूल हेल्थ की और वेलनेस की, तो समस्याएं कहाँ से खड़ी होती हैं, अगर विचार कर लें तो समस्याओं का समाधान हो जाता है। कदाचित इसी कारण से इस विषय को सबसे पहले लिया गया है, ताकि हम सबों के दिमाग के दरवाजे थोड़ा खुल जाए, हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सोचने लगेंगे। वैसे एकदम ऐसा कोई लैंडमार्क नहीं है कि फला एज से फला एज में ही परिवर्तन होगा। एवरेज है, इसलिए ह्यूमन बीइंग के ग्रोथ में इन्फेंसी
उसके बाद आता है यूट्यूब। वास्तव में हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो एडोलेसेंस का है, पर चूंकि दिया गया 8 वर्ष से 16 वर्ष, तो बिल्कुल सोचा नहीं ठीक कहा कि कुछ ऐसा समय है इसका पहला 2-3 साल जो चाइल्डहुड के अंदर भी आता है, लेकिन उसी एज में किसी बच्चे में एडोलेसेंस स्टार्ट भी हो जाता है। लेकिन अगर फोकस हम करें एडोलेसेंस पर, तो एडोलेसेंस या किशोरावस्था की शुरुआत औसतन 9 साल से 11 साल के बीच में हो जाती है। इसमें थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इसमें 9 साल के भी हो सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और ये एडोलेसेंस की शुरुआत या एडोलेसेंस का पीरियड, जैसे करण का खतरनाक है, एक क्रिटिकल एज है। हम लोग खेलते हैं खो-खो, उस खो-खो में वो खिलाड़ी जब भागना शुरू करता है, अगर उसका कंधा थोड़ा दाहिनी तरफ घूम गया, उसको बाएं घूमने का परमिशन नहीं, तो घूम ही नहीं सकता। इसलिए इस एज को समझना बहुत जरूरी है। तो बात आते हैं चेंजेस की। वैसे चेंजेस की चर्चा लगभग सबने की है, कमोबेश सबने सारी बातें कही ही हैं, पर क्योंकि मेरी बारी सिर्फ उस विषय के लिए मैं कहूँगा। पहला चेंज है फिजिकल। संक्षेप में कहूँ तो हाइट है, वेट है, शेप है, बॉडी में हेयर्स हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, और वॉइस में चेंज। तो वॉइस में चेंज तो बॉयज में होता है, गर्ल्स में, लड़कियों में नहीं होता। कारण क्या है? कारण ये है कि इस अवस्था में, जैसा कि उन्होंने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, वे हार्मोन्स टेस्टिस और ओवरी को फंक्शनल बनाना शुरू करते हैं। दरअसल चाइल्डहुड तक तो हमारे शरीर के सारे अंगों का विकास हो चुका होता है और उसमें एक तरह से कह सकते हैं ताकत आने लगती है। लेकिन इस एडोलेसेंस के पीरियड में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट होना होता है, उसकी मैच्योरिटी प्राप्त करनी होती है, और यही वो पीरियड है। इसके लिए जब हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है तो मेल सेक्स हार्मोन्स और फीमेल सेक्स हार्मोन्स का सिक्रीशन शुरू होता है। एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो एड्रिनल ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है, मेल में और फीमेल में दोनों में। इसलिए चाइल्डहुड तक तो लड़के और लड़कियों में दोनों में समान रूप से टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है, तो प्रभाव भी दोनों पर समान ही होता है। एक प्रभाव उसका ये है कि जो मसल्स हैं उनमें ताकत आती है, और जब मसल में ताकत आती है उस टेस्टोस्टेरोन के कारण, और जैसे ही एडोलेसेंस स्टार्ट होता है, टेस्टिस से भी टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन स्टार्ट होता है, तो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए उनका मस्कुलर स्ट्रेंथ, मसल पावर बढ़ने लगता है। गले में जो यहाँ पर वॉइस बॉक्स है, लैरिंक्स है, उसमें वोकल कॉर्ड है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे उसमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो ये मसल भी स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। और जैसे हारमोनियम हो या बड़े वाद्य यंत्र हो, उसमें जब ये मेम्ब्रेन मोटा हो जाता है तो आवाज़ भी मोटी हो जाती है, तो यहाँ आवाज़ बढ़ जाती है। इसके बाद जिस चीज के चलते ये इस सीडीपी का विषय है वो है इमोशनल चेंज। इमोशनल चेंजेस जो होते हैं, उस इमोशनल चेंजेस के चलते उन किशोरावस्था में जो भी बच्चे बच्चियां हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है, और यही व्यवहार में होने वाले परिवर्तन इस विद्यालय के वातावरण के लिए समस्या भी बन जाती
करें क्या। तो इसमें बिहेवियर चेंजेस जो आते हैं उसकी चर्चा हो गई है। पॉजिटिव है डिसीजन मेकिंग, लेकिन उस डिसीजन मेकिंग के लिए अगर पहले से पता न हो कि डिसीजन सही करना गलत करना, सही क्या गलत क्या पता न हो, तो डिसीजन गलत भी हो सकता है। बच्चे कुछ उनका थॉट फिलोसफर जैसा होने लगता है, हर चीज में सवाल करना शुरू करते हैं, किसी चीज जो ट्रेडिशन में चली आ रही है विरोध भी करना शुरू करते हैं, और यह विरोध हमारे लिए समस्या बनना शुरू करता है, परिवार में माता पिता के लिए समस्या बनना शुरू करता है। एक पॉजिटिव चीज है कि क्यूरियोसिटी बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है। यह जिज्ञासु प्रवृत्ति अगर उनकी बढ़ गई तो हमारे लिए उनको आगे ले चलना, पढ़ाना ज़्यादा आसान हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। इसलिए अत्यंत प्राचीन काल से हम लोगों को एक सूत्र दिया गया है। मैं उस सूत्र के साथ विषय को यहीं पर कंक्लूड करूंगा, क्योंकि जो इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, शरीर में चेंजेस हो रहा है, एक चीज इसमें आएगा, इसमें जेंडर इक्वलिटी की चर्चा होगी, जबकि मैं कहना चाहूंगा कि शब्द होना चाहिए जेंडर इक्विटी। नेचर ने बना दिया है मेल और फीमेल, चाहे किसी तरीके से सर्जिकल मेथड से जो ट्रांसजेंडर बन जाए, चेंज हो जाए, लेकिन नेचर ने जो बनाया है उसका प्रभाव मिटा नहीं सकते, कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो जो जेंडर है उस जेंडर के चलते जो प्रॉब्लम आएंगे, उन प्रॉब्लम्स को सही तरीके से टैकल करना ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। तो सूत्र दिया गया लाल एक पंचवर्षाणी, ये चाइल्डहुड तक का है। उस समय जो एज दिया गया 100 वर्ष की आयु होती है और 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का दिन होता है, तो उसमें लिखा है 10 वर्षाणी का एज, छठे वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की आयु तक रीड करना है, ऑब्जर्व करना। ताड़ी वो ताड़ना शब्द का प्रयोग आया है, उस ताड़ना का तकनीक और ज्ञान समझना जरूरी है। 10 वर्ष माने ताड़ी हर बच्चे को ऑब्जर्व करना है, बहुत कीन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि ये क्रिटिकल एज है। थोड़ी भी गलती माता पिता से हुई, विद्यालय में जो है केयर टेकर उनसे हुई, समाज से हुई, तो बच्चा गलत दिशा में जाएगा। और अगर आपने की ऑब्जर्वेशन करके पॉजिटिव वे में उसको अगर गाइड किया तो वह इस समाज का प्रहरी बनेगा, वो कोई साइंटिस्ट बनेगा, कुछ ऐसी चीजें बनेगी। और तब कहा प्राप्ति तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत्। अब आपने बना दिया उसको मैच्योर्ड, तब वह आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके चलने लायक बन जाएगा। इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, दोनों के बीच में कितना चेंजिंग होता है, किस प्रकार का होता है। जैसा कि हमारे रिसोर्स पर्सन ने कहा कि समय कम लेने के लिए, तो फिजिकल चेंज, हार्मोनल चेंज, इमोशनल चेंज भी होता है। इसमें अट्रैक्शन के साथ साथ बहुत भटकाव भी होता है। बच्चे बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, तो उनकी संगत खराब होती है, तो उसमें वो गलत संगत में जाते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव बातें आती हैं, तो पॉजिटिव बातें कम आती है उस उम्र में, निगेटिव बातें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। मेंटल चेंज में डिसीजन मेकिंग हो जाता है, तो वे लोग खुद से अपना डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी कभी तो होता है ना, इतने उतावलेपन में डिसीजन लेते हैं कि उनको बहुत लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, रॉन्ग पाथ पर चले जाते हैं। उस पर एक बहुत अच्छी शायरी है कि ना संघर्ष ना मुश्किल, ना संघर्ष ना मुश्किल, तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाएगी यदि लक्ष्य रहेगा सीने में। तो लक्ष्य तक चलते हैं हमारे एडोलसेंस, हमारे टीनेजर्स। बहुत बड़ी बात है कि इस उम्र में पॉजिटिव और नेगेटिव पीयर इन्फ्लुएंसेस भी होता है। अपने पीयर टू पीयर होता है ना, उनका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव पड़ता है, वो उसको सीखते हैं और उसका नकल भी उतारते हैं।
इस उम्र में लड़कों और लड़कियों में हेल्दी हाइजीनिक हैबिट्स भी आती हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि लड़कियां इतने अच्छे से अपने घर को अच्छा से सजाती हैं, साफ सफाई का ध्यान रखती हैं कि लोग कहते रहते हैं कि उनकी बच्ची बहुत अच्छा सफाई पर ध्यान देती है। अगर कोई बिस्तर को थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा कर दिया बेडशीट को तो गुस्सा आ जाती है, हमने बिस्तर बनाया इतना मेहनत से, आपने उसको बिगाड़ दिया। जबकि लड़के लोग होते ना, वो प्राय अक्सर यूज करते हैं इसी चीज को, लेकिन उतने वेलनेस जिसको बोलते हैं ना, अच्छे अरेंजमेंट जिसको बात आती है ना, तो इस मामले में लड़कियां ज्यादा आगे निकल जाती हैं लड़कों की अपेक्षा। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, इसके पहले दो पंक्ति और कि सबका अलग अलग मन, सबका अलग अलग मन, मनोविज्ञान, सोच समझ, विचार और नजरिया होता है। किसी का जीवन समुद्र की तरह है, किसी का जीवन समुद्र की तरह खरा, तो किसी का जीवन मीठा दरिया होता है, मीठा दरिया होता है। बहुत बहुत मुझे जब मैं पढ़ रहा था मुझे याद आ रहा है एक स्लोगन, जो कर सके उसको, क्योंकि चेंजेस जो है स्कूल में होता है, कॉलेज में थोड़ा सा मैं जोड़ूंगा मेरे लाइफ। तो इसमें 3 लाइन का है ये, स्कूल लाइफ इज लाइक रिलायंस, कर लो दुनिया मुट्ठी, ये रिलायंस का स्लोगन हुआ करता था। कॉलेज लाइफ इज लाइक एट ऐसी आजादी और का, एंड मैरिड लाइफ इज लाइक BSNL, जो बदल दे आपकी दुनिया। सो ये स्लोगन था और ये चेंजेस था। तो ये जो चेंजेस हैं, कहता है द टीनेज इयर्स brings many changes not only physically but also mentally, socially and emotions, ये सारे चेंजेस होते हैं। यानी कि जो बच्चा होता है वह डेवलप्स द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, फिलोसफिकल भी सोच सकता है, पॉलिटिकल लेवल पे भी सोचता है, एंड सोशल इश्यूज भी उसमें रहते हैं। यानी कि हर लेवल का सोच है। 8 साल का भी बच्चा है, 8 साल में भी कभी कभी क्या होता है कि उन्हें ट्रेडिशनल सोच भी आता है, ठीक आता है, कभी कभी आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल लेवल पे भी जाता है बच्चा। 7 साल 8 साल में बच्चा स्पिरिचुअल लेवल को भी पार कर जाता है, कोई 19 साल में भी नहीं कर पाता। तो ये भी एक चेंजेस है। कॉमनली चेंजेस नहीं इसको कह सकते, लेकिन चेंजेस हो सकते हैं मे बी। फिर सेल्फ गोल लेने का डिसीजन है, कंपेयर वन सेल्फ टू वन पीयर्स, यानी कि हम जो सोचते हैं वो दूसरे क्या सोच रहे हैं, कंपेयर करते हैं बच्चे, वो बच्चे किस लेवल का है, हम किस लेवल का है। फिर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल, और स्ट्रगल करते हैं वंस इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स, और पेरेंट्स से भी मुक्ति चाहते हैं कि नहीं हम इसमें इंटरप्ट को ना करें, हम जो डिसीजन ले रहे हैं उस पर कोई जो है हस्तक्षेप ना करें। रोमांटिक एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप बिकम इम्पोर्टेंट, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी कि उसका जो डिसीजन होता है फ्लैक्चुएट करते रहता है हर एज पर, जो है सो 10 में है, 11 में है, 11 ईयर्स पार किया, 13 किया, 15 किया, ये हर समय उसका जो है सो, चाहे वो गोल के प्रति हो या फिर विपरीत लिंग के प्रति हो, यानी कि हर लेवल पे उसका जो है सो, या फिर पॉलिटिकल लेवल पर हो, सारा कुछ बदलते रहता है। मे बी इन लव हैज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इन रिलेशनशिप अफेक्टेड फ्रॉम सोशल मीडिया डिसीजन वेरिएंस बताए, और बच्चा काफी झूठ बोलने भी सीख जाता है इसी 1 साल से, मतलब 1 साल से पहले से सीख जाता है, क्योंकि कभी कभी घर में फोन आता है, कहते हैं कि हम बाथरूम में है, बच्चा वही सीख लेता है, झूठ बोलने की भी क्रिया, उसमें प्रक्रिया चालू हो जाती है। द्वारा कुछ बिंदु जो छूट गया है उसको मैं रख रहा हूँ, या हो सकता है किसी के द्वारा रख दिया गया हो। एक है कि इस उम्र में संवेग की उत्पत्ति होती है, तुरंत उनमें ये भावना प्रबल हो जाती है कि क्रोध या रुलाहट या अन्य प्रकार की भावनाएं, वो प्रतिक्रिया तुरंत व्यक्त करते हैं। भोजन करना छोड़ देंगे, कोशिश करते हैं कि हमको कोई आए मना ले तब मैं फिर भोजन करूंगा, इस प्रकार की भावना भी उनमें प्रबल होती है। दूसरा है सम्मान एवं असम्मान का भाव पैदा होता है। अभी जो हम लोग कक्षाएं जो संचालित करते हैं, जो भैया बहनों को जो पढ़ाते हैं, उसमें दिखाई पड़ता है कि जो गुरुजी अच्छा से पढ़ाते हैं, उनको देते हैं, तो उनको अगर दंडित भी करते हैं तो उसको अन्यथा के रूप में नहीं लेते हैं। लेकिन जो पढ़ाने की क्रिया नहीं करते हैं या अन्य प्रकार की क्रियाएं करते हैं और दंडित करते हैं,
आक्रोश की भावना प्रकट होती है और वो जा करके अपने परिवार में भी उस भावना को व्यक्त करते हैं। दूसरा, भविष्य के प्रति जागरूक होते हैं और एक और है, उनमें तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। सीधे वह किसी बात को नहीं मानते हैं। जब कोई बात उनको लगता है कि ये नहीं तर्क के आधार पर सही है, तभी वह उस बात को स्वीकारते हैं और उनका जो दिमाग है वो बहुत तेजी से चलता है। तुरंत किसी की तुलना और किसी अन्य को नामकरण कर देते हैं। अपने मित्रों को भी वो अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इवन आप में से बहुत लोगों का नामकरण भैया बहन किए हुए हैं, ये गुरुजी का ये है, ये गुरुजी का ये है। तो ये सभी इसी उम्र में विकास होता है। और एक और महत्वपूर्ण है गुड टच और बैड टच, कि उनमें ये भावना प्रबल हो जाती है कि किस प्रकार का जो स्पर्श है वह अच्छा है कि खराब है। धन्यवाद। थैंक यू। में यह हम लोग अलग अलग जगहों पर इस उम्र में चेंजिंग देखते हैं, उसमें कुछ बदलाव होते हैं। BHU के एक जर्नल में ये बात छपी हुई थी कि पहले जो हार्मोनिक चेंज था, जितने चेंज होते हैं इस उम्र में वो सारे हार्मोनिक चेंज ही होते हैं और वो हार्मोनिक चेंज समय के अनुसार, जैसे कोई केमिकल्स है वो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग अपना इफेक्ट शो करता है, वैसे ही इन्वायरमेंट से भी हार्मोनिक चेंज अलग अलग समयों पर इफेक्टिव होता है। इसमें ये हार्मोनिक चेंज जो है फिजिकल चेंज आते हैं, बहुत सारे फिजिकल चेंज आते हैं लड़के और लड़कियों में अलग अलग। ये भी कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। उनके मेंटल चेंज, जब शारीरिक विकास होना शुरू होता है उसमें जो चेंजिंग होते हैं उसके चलते उनके मेंटल चेंजिंग होने लगते हैं। मेंटल चेंजिंग जब होता है तो उसमें उनके वॉइस चेंज होने लगते हैं, आवाज़ें बदल जाती हैं उनकी। अपनी ही आवाज़ को जब पीछे से वो पिछला आवाज़ को सुनते हैं बच्चे तो उनको लगता है ये मेरा ही आवाज़ है, उनको उसमें नहीं समझ आता है। जब कंपेयर करते हैं तो उनको ऐसा लगता है। उसके बाद जब उनकी आवाज़ें बदलती है तो उनके बिहेवियर भी चेंज होने लगते हैं। उनके बिहेवियर में आपने चेंजिंग दिखता है, माता पिता देखते हैं, अभिभावक देखते हैं, टीचर देखते हैं कि कल तक वो बच्चा जो नॉर्मल कंडीशन में रहता था आज उनका बिहेवियर चेंज है। सबसे बड़ा चेंजिंग उनके एटीट्यूड में आता है, उनके दृष्टिकोण में चेंजिंग आता है और वहाँ से कई डिफरेंट वे में वो आगे बढ़ने लगते हैं। ये सारे चेंजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। इमोशनल चेंज, एटीट्यूड का इमोशनल चेंज है, सेल्फ डिसीजन चेंज। उनमें स्वयं से डिसीजन चाहे अच्छा करे या बुरा करे, उनमें डिसीजन लेने की क्षमता आने लगती है। फिर उनका थिंकिंग स्किल बढ़ जाता है, थिंकिंग चेंजिंग होने लगता है और ये सारे चेंजिंग लड़के और लड़की दोनों में होते हैं। ये चेंजिंग होंगे समय, जलवायु और जगह, इन तीनों पर निर्भर करते हैं। हमारे लिए चैलेंज का विषय है कि इस उम्र में जो एडोलेसेंस एज है, इस एडोलेसेंस एज पर हम शिक्षक, विद्यालय में हम शिक्षक, घर में पेरेंट्स और सोसाइटी, इन तीनों के लिए बड़ी चेंज है। इस पर चूँकि इस चेंजिंग से सभी लोग गुजरे हुए हैं, वे अपने भी बच्चे बच्चियों पर इस उम्र में ध्यान अगर दें तो इनके निगेटिव इफेक्ट को रोका जा सकता है। इस जो टॉपिक्स का मेन उद्देश्य है इस विद्यालय में, इस कार्यक्रम में, इसका यही है कि इस उम्र से हमारे विद्यालय में बच्चे बच्चियाँ गुजरती हैं। अगर इस चेंज को हम भली भांति समझें तो ये हमारे लिए चैलेंज है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हम इस प्रकार से करते हैं जब तक उसको हम ध्यान दें। अंत भला तो सब भला। आज का जो विषय विश्व स्पर्शन के द्वारा जो दिया गया है कि 8 से 15 वर्ष के आयु के बच्चों या बच्चियों में क्या परिवर्तन होता है, तो उसमें सबसे पहले इस उम्र के बच्चों या बच्चियों में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों रूप से अमूल परिवर्तन होता है।
शारीरिक में जैसे उसके फिजिकल ग्रोथ में वृद्धि, मानसिक उसकी सोच में वृद्धि और बौद्धिक स्तर पर भी समाज के साथ कैसे रहना, कैसे बैठना या पूरे अपनी सोच को बढ़ावा देना, इस उम्र में बच्चे और बच्चियों में काफ़ी वृद्धि होती है। इसके अलावा दूसरा बिंदु है, इस उम्र के बच्चों में सही ज्ञान का, सही और गलत का ज्ञान का बोध होता है। सही क्या है, गलत क्या है, इस उम्र के बच्चे सोचने लगते हैं। तीसरा है, विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण बढ़ता है। लड़कियों में लड़कों के प्रति, लड़कों की अपेक्षा उसमें शारीरिक विकास अधिक होता है। काम वासना की भावना भी इस उम्र में बढ़ती है। आवाज बदलने लगती है। हाव भाव में काफी चेंज होता है। समाज में दोस्त बढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है और इस दोस्त बढ़ाने के क्रम में जो लड़के या लड़कियां हैं वो अपने माता पिता की बातों को न मान करके अपने दोस्तों की बात अधिक मानने लगते हैं और यहीं से उनमें भटकाव भी शुरू हो जाता है। गुस्सा, क्रोध की भावना भी इस उम्र में बढ़ती है। एक और है, अच्छी बात है, इस उम्र के बच्चे या बच्चियां अपनी ऊंची सोच, ऊंची उड़ान भर सोचने की भावना लाते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वह अपना लक्ष्य को काफी आगे बढ़ाने की भी प्रवृत्ति रखते हैं। नकल की प्रवृत्ति बढ़ती है। यही सब विषय है। अंत में जो हमारे गुरु के वक्ता श्री कृष्ण कुमार जी ने बताया कि जो हम शिक्षक हैं और हमारे प्रति जो ये हमारा जो दायित्व मिला है, इस उम्र में लड़के सही से ज्यादा गलत को एडॉप्ट करते हैं। तो हमारे लिए चैलेंज है कि हम उन बच्चों में इस प्रकार की भावना भरें, सही को सही बतावें, गलत को गलत बतावें, जिससे उसमें वो अपनी सही रास्ते पर जा सकें, गलत का नकल नहीं करें। जैसा कि हमने देखा कि सभी लोग अच्छे से पार्टिसिपेट किए, सभी लोगों ने सहयोग किया, सभी के अपने अपने विचार आए। उन विचारों के साथ यह बात आती है कि हमें अपने भैया बहन जो हैं उनकी देखभाल के लिए वो जिस मानसिक स्थिति से गुजरते हैं, अचानक अगर हम उनको कभी भी कोई भी दंड देने जा रहे हैं तो पहले उनके स्थान पर अपने आप को रखें और हम ये सोचें कि हम जब किशोरावस्था में थे तो हम किस तरह की गलतियां करते थे या कर रहे हैं या कैसे वो कर रहे हैं, उनको कैसे ट्रिगर करना है। वो भावनात्मक रूप से अगर आप उनके साथ जुड़े हुए हैं तो आप जो है तो ज्यादा उनको जो है समझ पाएंगे, उनकी कठिनाइयों को समझ पाएंगे और एक अच्छे 2:15 अभी आप एक वीडियो देखेंगे। देखो मुझे क्या मिला, हमारे बचपन की तस्वीरें।
ये केस स्टडी 1 है, जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग, पढ़ेंगे भी और पढ़ेंगे दोनों, और दोनों साथ घर जाते हैं, घर से स्कूल और स्कूल से घर। राकेश being a peace Mihir saying that he speaks in a girl's voice। वो जो है राकेश जो है तो मिहिर से कहता है कि तुम्हारी जो आवाज है वो लड़कियों की तरह है, और आगे कहता है he also laughs। In fact, Mihir has got no hair on his upper lip, यानी कि मिहिर के अपर लिप पे, यानी कि उसकी मूंछें नहीं आई हैं, मिहिर की मूंछें नहीं आई हैं, उसकी आवाज लड़कियों के जैसी है। He decided to go home and ask ये होंगे, एक मिहिर के रोल में होंगे और एक राकेश के रोल में होंगे। फिर उसमें से किसी एक पर्सन को उसमें से उसका कंक्लूजन बताना है कि क्या यह सही है, गलत है, कैसे है, कि
कंक्लूजन बताना है वो आपके आपस के व्यू होंगे। इसके लिए आपको 5 मिनट का समय है और 2 मिनट का एक्ट करना है। 2 मिनट में पूरा एक्ट करना है। आप उस एक्ट को समझ लीजिए। जहाँ पे 3 लोग हैं वहाँ पे एक अलग से अल्टरनेट करके 4 किया जाएगा। तुम्हारा आवाज तो बिल्कुल जो है लड़की की तरह से है। राकेश, क्या तुम्हें ये पता नहीं कि बिजली कैसे होती है? ये बिजली कैसे होता है? बिल्कुल बिल्ली कैसा होते हो? देखो तुम्हारे मूछ नहीं है, दाढ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल दिखते भी लड़की के जैसे हो। इतना सुंदर और स्मार्ट क्यों है? बिल्कुल लड़की कैसे दिखते हो? आओ मेरे प्यारे बेटे। नहीं करनी चाहिए सार्वजनिक रूप से, क्योंकि किसी की मानसिकता पर ठेस पहुंच सकती है बेटा। इसलिए इस बात पर हमेशा 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 ध्यान रखो कि किसी की मानसिकता का जो मानसिकता पर आघात पहुंचेगा तो तुम्हारा किरदार कर सकता है। पिताजी, लेकिन ये मिहिर जो है ये तो बिल्कुल लड़की की तरह से ही लगता है। इसका हाव भाव, इसकी आवाज, ये सब कुछ जो है बिल्कुल लड़की की तरह से बेटा। आवाज से कोई स्त्री नहीं हो जाता। उस अपनी क्षमताओं से, अपने कार्यों से वह स्त्री सा व्यवहार करता है जब वो स्त्री हो सकता है। लेकिन ऐसे नहीं हो बेटा। अगर तुम्हारे साथ उस तरह की वाकया होती तो तुम क्या करते? सोचो जरा इस विषय। ठीक है, आगे से इसका ध्यान रखेंगे। हम मेरे को आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। धन्यवाद। को प्रभावित करते हैं। जैसे जोगेश्वर पुरी ने पिछली क्लास में इस बात की चर्चा की थी, कौन सा हार्मोन कब स्त्रियों में स्रावित होता है और पुरुषों में कब होता है, किसका फंक्शन क्या है, कौन किस कार्य के लिए बना हुआ है। तो हार्मोनल इफेक्ट के चलते कुछ परिवर्तन और परिवर्धन शारीरिक क्षमताओं और भौतिक अपीयरेंस में दिखता है। इसलिए ऐसा नहीं हो जाता कि कोई आवाज़ दे दे स्त्री की तरह तो वो स्त्री हो जाए। इसलिए हमें सदैव इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सम्मान का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। किसी की आवाज़ को सुन करके और उसका मजाक मखौल नहीं करना चाहिए। चेंज है या व्यवहार है, उसके आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं होता है। ईश्वर ने जो लिंग निर्धारित करके भेजा हुआ है उसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए। और अगर किसी में ऐसा है तो अगर रिएक्ट करते हैं तो उनके अंदर आत्मगिलानी की भावना पनपती है, वो अवसाद में चले जाते हैं। मैं दोनों को समझाऊंगा, बताऊंगा कि नहीं ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग को भगवान ने बनाया है, ये गॉड गिफ्टेड है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं करनी चाहिए। दोनों ये सवाल है। धन्यवाद। इसी के साथ केवल 11 में सिर्फ विजय से बताएंगे। एक आदमी बार बार सिर्फ विजय से बताएंगे। आप भी 9th और 10th में कक्षा लेते हैं, इस तरह का कंडीशन अगर किसी बच्चे के साथ है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे वो छुटकारा पा सकता है, ये सही बताएंगे। सबसे पहले तो बच्चों से ही भावना को समझा करके हटाना है कि आप भी मत बनिए, आप बेकारी रहिए, बहुत बताना
एजुकेशन का जो समय है वो अलग अलग बच्चों में अलग अलग उम्र में हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि विधि उस एज को पार कर गया है और उसका सिग्नेचर भी नहीं हो पाया है, जिसके कारण उसको गाड़ी में आनी चाहिए थी। यह बच्चों को क्लियर कर देना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तुम्हारा पहले आ गया है उसका बाद में। एक जोरदार आप समझते हैं कि हम लोगों को नहीं मिली है, ऐसा नहीं है। हमें तो इस तरह की टकराहट बहुत जगह मिली है। क्लासों में तो मैंने कई जगह इसका समाधान भी दिया है। बच्चों इस तरह की भावनाओं में मत पड़ो और अपना जो काम है, जो अपना रास्ता सही है, उसी रास्ते पर चलने का प्रयास करो। इससे तुम्हारी और उस गुरु की भलाई होगी। धन्यवाद। आप लोग सर्वभूत से जरा यहाँ पंडित शब्द के लिए मैं थोड़ा कहना चाहूँगा। पंडित मीन्स स्कॉलर, उचित अनुचित का ज्ञान है। तो हमारे बच्चों को अगर टीन एज में उचित अनुचित का बोध आ जाए तो उनका कल्याण हो जाएगा। और उनके अंदर ये जो हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण ये जो आकर्षण और विकर्षण है, इसको दूर करने के लिए हमें उनको मेंटली समझाना होगा कि भैया आपका एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को लेकर के आए हो और उस लक्ष्य को पाने में ये छोटी छोटी बातें भटकाव है। ये समाज में छोटी सी शारीरिक बीमारी है या शारीरिक विकास है जो डाइवर्ट हुआ है। इसलिए आप अपनी बुद्धि को डाइवर्ट मत करो और जैसे अपने लक्ष्य को देखो। लक्ष्य और हट जाओगे इन्हीं सारी बातों को ले जाओ तो परमात्मा की प्रकृति की देन है जो ऐसा कोई है। तो अपने लक्ष्य को देखोगे तो लक्ष्य पे टिकी मिल रहा है। साइड बाई साइड की चीजें, आगे पीछे की चीजें नहीं देखती, बल्कि अपना लक्ष्य देखती है। और तुम्हें सफलता पानी है तो अपने लक्ष्य को देखो, न कि किसी की आवाज को। अपने बिहेवियर, अपने टैलेंट को अच्छा बनाओ। धन्यवाद। और सब में हम चीज अलग अलग टाइम होता है, जैसे किसी को चिढ़ाना तो दोनों के सूट में जो है कभी तू लड़का लगता है, कभी तू लड़की लगती है, कभी